أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine and doing well. عزیز طلبہ اور طلبات، آج ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ بھی سیکشن سی کے لاسٹ کویسچن کی روح سے انتہائی اہمیت والا اور انتہائی اہمیت کے حامل ہی ہے۔ اس کویسچن میں آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن میں بتا چکا ہوں کہ یا تو لیٹر رائٹنگ وہاں پر آتا ہے یا اپلیکیشن رائٹنگ۔ آج اسی ڈسکشن کے دوران انشاءاللہ ہم دو اپلیکیشن ڈسکس کریں گے، اور یہ دونوں اپلیکیشن ضروری نہیں ہے کہ پیپر میں یہ ہو ان میں سے ایک آ جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ نہ آ جائے، لیکن حالات حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں اپلیکیشن کو آج کے موضوع کے لیے میں نے مناسب سمجھا۔ Dear students, سب سے پہلے let me present how to write an application، اور پیپر کے دوران اس سوال کو کس وقت اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یاد رکھیے اسٹوڈنٹس، اکثر اسٹوڈنٹس ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس سوال کو پائے تکمیل تک نہیں لے جا سکتے ہیں، اور وہ ان سے قاصر ہوتے ہیں کہ اس سوال کو کس طرح اچھے طریقے سے اٹینڈ کرے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سوال کو جب بھی آپ نے لکھنا ہے، جب بھی آپ نے اس پر ٹرائی کرنی ہے، تو وہ فریش پیج سے ہی شروع کرنی ہے، کیونکہ اس سوال کے 10 مارکس ہوتے ہیں، اور 10 مارکس پیپر میں ایک چیز پر کسی بھی پورشن کے نہیں ہیں، تو یہ انتہائی اہمیت والا سوال ہے۔ ہاں، سیکشن سی میں ہر سوال کے 10 مارکس ہیں، لیکن وہاں پر 2 پارٹس بھی ہوتے ہیں۔ This is one and only one. کلیئر؟ اور یہ جو اپلیکیشن کے الفاظ آپ کے ذہنوں میں ہیں، you can write from your own mind, you can write and you can go with your own English style۔ ضروری نہیں کہ اس کو کریم کرو، رٹا لگاؤ، اپنے دماغ کا نو، طریقہ سیکھو، ورڈز کی آغاز کس طرح کرنی چاہیے وہ ذرا سیکھو، then you can go for your application۔ اچھا جی، سنیے، اپلیکیشن کو آپ لوگوں کی پیج کا جس طرح آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہے، یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہے، تو آپ لوگوں کا جو سٹارٹ ہوگا یہ بالکل رائٹ ٹاپ موسٹ پر ہی ہوگا، اور یہ آپ نے ضرور مارجن لائن لگائے ہوں گے، اسی مارجن لائن کے بالکل ایڈجسنٹ آپ لوگوں نے آغاز لینا ہے۔ ریممبر رائٹ سائڈ، ٹھیک؟ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، پہلے جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے یا آپ لوگ بچے ہوا کرتے تھے، آپ لوگ یہ یاد کرتے تھے کہ ٹو دا پرنسپل، ٹو کو آج کل لوگ استعمال نہیں کرتے، اور یہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ کیونکہ ہیڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ آگے سمجھ کر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ٹو کو ختم کیا گیا ہے، رائٹ سائڈ سے آغاز ہے، اور پیج کی سٹارٹ یا فریشنس یا ٹاپ سے اس کی آغاز ہے، اور پھر آگے جانا ہے جو بھی لکھنا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 جگہ ہوتے ہیں جہاں پر مارکس لینے کی گنجائش ہوتی ہے، سٹارٹ، مڈ اور اینڈ، یہ 3 جگہ ہے، اور جو ہمارا میسج ہے یا جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ بدن ہی کا حصہ ہے، باڈی، اس میں ہمارا پیغام ہے، اور پیغام ہوا کرتے ہیں، تو اپلیکیشن کے لیے یہ ضروری ہے۔ نیکسٹ، باڈی کے لیے میں ایک لفظ 2 کے حوالے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے ہٹ کر زندگی میں جتنے بھی مواقع آپ لوگوں کو
एप्लीकेशन लिखने के लिए आते हैं वहाँ पर भी यू कैन गो विद द सेम ट्रेडिशन जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। मेरे स्टूडेंट्स बी रिमेंबर कि एप्लीकेशन की बॉडी में दो जुज जरूरी है। जुज नंबर 1, आपने एप्लीकेशन में सबसे पहले जो भी मसला है, बॉडी के पैराग्राफ की मैं बात करता हूं, वो मेंशन करनी है। मसला क्या है, एजेंडा क्या है, क्यों लिखनी है, और दूसरा जो मैंने पॉइंट बता दिया, इसका सॉल्यूशन भी निकालना है। अभी आपकी मर्जी है, अगर इशू स्मॉल है तो एक पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ में इशू लिखो, दूसरे पैराग्राफ में इसका सॉल्यूशन लिखो। अगर एजेंडे ज्यादा है तो अक्सर लोग ये करते हैं कि एक पैराग्राफ ही के अंदर वो एजेंडा लिखते हैं और उसी का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ में एजेंडा लिखते हैं और सॉल्यूशन वहां पर मेंशन करते हैं। ठीक, और कोशिश करनी चाहिए कि इसी जो पैराग्राफ मैंने बता दिया, पैराग्राफ की वॉइस में भी आप लोग लिख सकते हो और एक ही पैराग्राफ भी बना सकते हो, और जिस तरह आप लोगों ने राइट से स्टार्ट लेनी है उसी तरह राइट पे खत्म ही करनी है। तुझ से शुरू और तुझ पे खत्म, राइट साइड की तरफ मेरा इशारा है, तुझ से शुरू और तुझ पे खत्म। तो इस किस्म का सिस्टम बरकरार रखकर यू विल बी गिवन हाई मार्क्स। ये मेथड है। आगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो आइए जरा देखते हैं कि मैंने कौन से दो एप्लीकेशन यहां पर अखज़ की है और किस तरह मैंने सैंपल के तौर पर या सैंपल्स दोनों को मैं जब इशारा करूंगा तो मुराद है। सबसे पहला जो मसला है वो एप्लीकेशन में मैंने हेडिंग में मेंशन की है कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज फॉर द अपॉलॉजी ऑफ मिस बिहेवियर। आप लोगों से जवान हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट ने या किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की, टीचर के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, अपनी जवानी दिखा दी, लेकिन बाद में उसने पछतावा महसूस किया और उसी पछतावे का जो रिजल्ट है पेज पर दिखाना चाहिए, पेज पर नजर आनी चाहिए। और वो किस तरह, टीचर, इस एप्लीकेशन का समरी ये है कि टीचर के सामने स्टूडेंट ने गुस्ताखी की या उसकी थोड़ी सी इंसल्ट की, लेक्चर को डिस्टर्ब किया, तो टीचर ने क्लास से निकाला और इसे निकालने की वजह से यह भी कहा कि जब आप मेरी माफी के लिए आओगे मैं तो माफ करूंगा, लेकिन टीचर प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, इजाजत नामा होना चाहिए। तो ये डायरेक्टर या प्रिंसिपल को साइन एप्लीकेशन लिखते हैं और वहां पर कहते हैं कि मैंने इस टीचर से माफी मांगी, उसने ये बताया कि आपका जो साइन है या आपका स्टैंप है वो जरूरी है, फिर क्लास में मैं छोड़ूंगा, प्लीज जरा मेरे टीचर को रिक्वेस्ट करें। ये उसका मेन लबोलबाब है। आइए जरा देखते कि क्या है। द प्रिंसिपल राइट साइड से मैंने स्टार्ट लिया है, मेरा राइट साइड ये है। इस तरह नहीं कि आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखोगे क्या चाहिए तो लेफ्ट साइड पे आता है, नो नेवर। मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो अभी मेरा है ये मेरा लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है और इसी लेफ्ट साइड पर ये राइट साइड पर नजर आ रहा है और इसी राइट साइड पर जो नजर आ रहा है ये इसलिए कि जो ये मैंने रूल में बताया राइट साइड पर आनी चाहिए। द प्रिंसिपल ABC, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना है, शायद बोर्ड में आ जाए, ऐसा ना हो कि आप लोग लिखो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हरफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रहीम यार खान कैंपस, लाहौर कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का या हर बात का इजहार ज़रूरी नहीं लब पे, कुछ सीक्रेट्स भी होनी चाहिए। सब्जेक्ट मेंशन करना चेकर या प्रिंसिपल या डायरेक्टर के लिए इंतहाई आसान होगा। बाज़ों का इस तरह होता है कि उसके हाथ ज़्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ वो चंद एक लाइन पढ़ते हैं, सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ते, अपोलोजाइजिंग फॉर मिस बिहेवियर, अपोलोजाइज फॉर मिस बिहेवियर, ये हेडिंग है। हेडिंग इसमें बाज़ लोग लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, बाज़ लोग फुल स्टॉप नहीं लगाते। हेडिंग की ये कुछ रूल्स हैं। रिस्पेक्टेड सर अगर मेल है, रिस्पेक्टेड मैडम अगर फीमेल है। क्या है, विद मोस्ट रिस्पेक्ट, सबसे पहले इट स्टेटेड दैट आई हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ माय मिसबिहेवियर, मैंने अपने आप
को एक अजीब, एक मैंने अपने आप को इस हालत में देखा, मालूम मुझे हुआ कि आपने गलती की। कहाँ पर? इंग्लिश टीचर के सामने। In fact, it was my huge mistake which made me kicked out of the class by my teacher. और ये गलती इस तरह थी कि मैंने टीचर को मजबूर किया वो कि वो मुझे क्लास से बाहर धक्का दे, भगा दे या फेंक दे। मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। And said you would go. यहाँ तक यहाँ इस बोर्ड पर है। आइए ज़रा जाते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर कि वहाँ इसका जो अधूरा हिस्सा है वो किस तरह नज़र आ रहा है। तो आइए ज़रा नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, पिछले बोर्ड पर आप लोगों ने ये देखा कि उन टीचर ने कहा कि यू वुड गो, कहा टू प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर टेकिंग परमिशन ऑफ द क्लास, कि जाओ कि इजाज़त लो टीचर प्रिंसिपल से। आई डिड नॉट वांट टू डू दैट, वो गलती मैं नहीं करना चाहता था। एंड आई एम अशेम्ड ऑफ माई दैट बैड एक्ट इन फ्रंट ऑफ माई इंग्लिश टीचर, और मैंने जो गलती या जो कारनामा किया है, जो करतूत का इजहार किया है, उस पर मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। सो काइंडली रिक्वेस्टेड टू टेल हिम, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि उसे ज़रा बता देना एंड सॉल्व माई इशू, और मेरा ये मसला हल कर दे। क्यों? आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, क्यों आगे टेस्ट आने वाले हैं, क्यों मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, क्यों मेरा अब्बू क्या कहेगा, क्यों मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, क्यों मेरे वालिदैन को अगर पता चले तो वो मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे नहीं। इन सब चीज़ों का मुझे ख्याल है। पहले पता नहीं था, जवानी का थोड़ा सा वो मैं होश खो बैठा था। आई हैव आस्क्ड फॉर अपॉलॉजी, मैंने टीचर से गुजारिश की है, बट ही डिमांडेड योर परमिशन, लेकिन उसने आपकी इजाजतनामा पूछा है। नाउ अभी आई एक्सक्यूज माई मिस्टेक, तो यहां पर जो माई है, आई एक्सक्यूज माई मिस्टेक, ये यहां पर ऑफ नहीं आना चाहिए। आई एक्सक्यूज माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती का माफी मांगता हूं। एंड प्लीज अलाउ मी टू सिट इन क्लास, और मुझे इजाजत दो बराए करम कि मैं क्लास में बैठ जाऊं। राइट साइड से मैंने स्टार्ट लिया था और इसी राइट साइड पर मैंने ख़त्म किया। थैंक्स सिंसियरली यूअर्स। एक चीज़ और ज़हन में याद रखिए, याद रखो, ये मैं एडिशन करता हूँ बी रिमेंबर। अगर यहाँ पर सिंसियरली आएगा या ओबीडियंटली आएगा या फेथफुली आएगा तो यहाँ पर यूअर के साथ एस लगाना ज़रूरी है। अगर ये सिंसियर है तो फिर यहाँ पर एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा? यूअर्स सिंसियरली या सिंसियरली यूअर्स ज़रूर मेंशन करना है, और ये अपॉस्ट्रॉफी के बगैर लिखना है। बाज़ लोग इस यूअर्स को इस तरह मेंशन करते हैं जो गलत है। क्लियर? एंड XYZ आपका नाम क्या है ये भी मेंशन नहीं करना है। ये तो जनरल है, अपने डायरेक्टर को, अपने प्रिंसिपल को लिखना है तो यू विल राइट क्लियरली। क्लियर? दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन किस चीज़ के ऊपर है और उसको हमने किस तरह उसका सैंपल बनाया है। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और जाते हैं वहां पर। डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड एप्लीकेशन है आज के लिए, और ये सेकंड एप्लीकेशन ये स्कॉलरशिप के ऊपर है। स्कॉलरशिप के लिए क्या है? डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे स्कॉलरशिप दे दो, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदान से है। मेरे अब्बू मर चुके हैं, मेरे बड़े भाई के ऊपर या उसके कंधों पर जिम्मेदारी है, मेरा ये कंडीशन, प्लीज़ मुझे स्कॉलरशिप दे दीजिए। तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसके अल्फाज किस तरह है। राइट साइड से स्टार्ट लेनी है और राइट साइड पर इंशाल्लाह ख़त्म भी करना है। तो क्या है? द प्रिंसिपल ABC सब्जेक्ट मेंशन करना है। याद रखो, पहले एप्लीकेशन में यहाँ पर वहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया था, फुल स्टॉप यहाँ पर मैंने लगाया है हेडिंग के तौर पर। क्लियर? डियर सर या डियर मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज स्टेटेड दैट आई हैव पास्ड माय फर्स्ट ईयर फ्रॉम कॉलेज। किस कॉलेज की तरफ इशारा है? जिस कॉलेज में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पास किया है, जिस डायरेक्टर को आपने मेंशन किया है। क्लियर? आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, मेरा ताल्लुक एक
غریب خاندان سے ہیں. My father is dead, میرے ابو مر چکے ہیں. My elder brother has a large family to support, اور میرے بڑے بھائی کے اوپر ذمہ داری کہ وہ بڑے خاندان کو سپورٹ کر دے. My younger brother studies at government school because of bad economical condition of our family. میرے چھوٹے بھائی کو میرے بڑے بھائی نے گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کروایا ہے کیونکہ آج کل کے حالات، معاشی حالات، پیسوں کے حالات انتہائی خراب ہے. اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے I have topped my class in exam. میں نے اپنے کلاس کو بھی ٹاپ کیا ہے. I am also a regular student. اور میں باقاعدگی سے کلاس کو بھی اٹینڈ کرتا ہوں. Therefore, I request you to grant. اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے دے. کیا دے؟ نیکسٹ بورڈ کی طرف ذرا جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے بورڈ میں ہم نے لاسٹ جو لفظ لکھا تھا وہ تھا گرانٹ. یہاں پر کیا ہے؟ گرانٹ می اے فل اسکالرشپ سو دیٹ آئی فوکس آن مائی اسٹڈیز ایزیلی. کہ مجھے ایک ایسا مکمل بھرپور پیکج دو اکنامیکل یا اکانومی کے حوالے سے، جس میں مجھے بغیر کسی رکاوٹ کے مطالعہ کرنا پڑے اور میں آسانی سے اپنے اسٹڈیز پر فوکس برقرار رکھوں. اس کی بات کیا ہوگا؟ I shall be very thankful to you for this kindness. اور اس قسم کی خیرخواہی سے میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہی ہوں گا. yours sincerely، یہاں پر میں نے yours کو پہلے لے کر آیا ہے. اس اپلیکیشن میں نے بعد میں لکھا تھا sincerely yours، یہاں پر میں نے yours sincerely لکھا ہے اور XYZ. تو میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ان دو اپلیکیشنز کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ پیدا ہوا ہوگا. اسی کو مد نظر رکھ کر یو کین رائٹ یور اون اپلیکیشن. آپ اسی طرح اپنے اپلیکیشنز بھی لکھ سکتے ہو. تو اپنے مطالعے کو جاری رکھو، جہاں پر بھی ہو خوش رہو، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.